Hello student, in this lecture we want to study the next thermodynamics function Gibbs energy. What is mean by Gibbs energy? Gibbs energy is also called a free energy, that is somewhat amount of energy free which is utilized for the useful work, that is called a Gibbs energy. Gibbs energy, a part of a energy which is free to convert it into useful work, that is called a Gibbs energy. That is a part of energy which is free for the conversion of a useful work, that is called a Gibbs energy. So what are its silent features? The important point for this, that is Gibbs energy, that is the energy which is required for the useful work, constructive work, that is called a Gibbs energy. Now again it is an extensive property. Its value depends on the amount of a matter present in a system या फिर amount present in a system. Then next it is a state function, that is its value depends on initial and final state, and the absolute value of G, absolute value of free energy cannot be determined, but the change in free energy can be calculated, final minus initial. By using this you can calculate the Gibbs free energy change. Now expression for free energy, that is the G equal to H minus Ts. G equal to H minus TH. H यानी enthalpy, T temperature in Kelvin और S यानी entropy. तो here H is a state function, temperature is a state function, yes, entropy is also state function, and hence the G is also state function. Clear? तो ये होगा इसका proof. Now the free energy change या फिर we can say that is the Gibbs energy change given by the scientist Gibbs-Helmholtz. It is called a Gibbs-Helmholtz equation, that is the delta G equal to delta H minus T delta S. It is called a Gibbs-Helmholtz equation at a constant temperature here, and pressure delta G equal to delta H minus T delta S. तो ये फ्री एनर्जी चेंज का इक्वेशन या फिर गिब्स एनर्जी चेंज का इक्वेशन याद रखने का वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. तो यहाँ याद रखने का द यूनिट ऑफ ए G, that is the joule में, that is it is also in a joule, temperature in Kelvin, delta H joule per Kelvin. लेकिन while solving the numericals ख्याल में रखने का delta G generally given in a kilojoule, delta H generally given in a kilojoule, and delta H generally given in a joule per Kelvin. So while solving this, kilojoule is converted into joule, kilojoule is converted into joule, so the entropy also in a joule. This is the synchronization of a unit. ख्याल में रखने का. तो ये हो गया अबाउट द गिब्स एनर्जी चेंज. तो इसके ऊपर से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आस्क्ड डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल. डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल, डिराइव डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी आ सकता है ये. तो नाउ द एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्रेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस, क्या लिखोगे, सिस्टम प्लस डेल्टा एस surrounding. Clear? But suppose consider delta S system is equal to delta S, and अपने को पता है delta S surrounding is equal to minus delta H upon T. तो here delta S system यानी delta S and delta S surrounding equal to minus
delta h upon t. Putting the value, suppose it is called equation number 1. Hence from 1 क्या लिखोगे फिर, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम के लिए डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. नाउ दिस इक्वेशन, सपोज इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय टी. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, अगेन यहाँ पर टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच. क्लियर. नाउ चेंजिंग द साइन, या फिर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, व्हाट विल गेट. तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस और ये माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच. नाउ रीअरेंजिंग, तो रीअरेंजिंग दैट इज द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. क्लियर. बट अपने को पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 वी कैन राइट, क्या लिखोगे फिर, दैट इज द डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. तो ये हो गया डेरिवेशन, 2 मार्क के लिए आता, डिराइव डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डेल्टा एस टोटल इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, बट delta S system is considered as a delta S, and you know delta S surrounding equal to minus delta H upon T. Putting the value, multiplying with temperature T and changing the sign, you will get a final equation, that is the delta G equal to minus T delta S total. Clear. समझ में आ गया. तो very simple. Now अब Gibbs free energy change, it is also used to determine the spontaneity. So next point, that is the delta G and spontaneity. तो अभी देखा अपन ने, सपोज दैट इज द लास्ट डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 या फिर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, देन द प्रोसेस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. तो क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा जी इज लेस देन 0, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. निगेटिव साइन है इसलिए. क्लियर. सेकंड पॉइंट, डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो यहां पर निगेटिव साइन है तो यहां उल्टा आ जाएगा. हेंस डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो the process reaction will be non-spontaneous. अगर डेल्टा एस 0 है यानी एंट्रोपी अगर मैक्सिमम है तो डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा, 0, यानी ये हो जाएगा मिनिमम. इट इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज कॉल्ड प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. इट इज कॉल्ड प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये हो गया डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी. अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी 0 मिनिमम अगर डेल्टा जी है तो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. क्लियर. तो ये हो गया अबाउट द डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी. नाउ again the next factor which affects on the spontaneity, that is the delta H, by using this equation, that is the delta G equal to delta H minus T delta S. अब ये तीनों का इफेक्ट लेंगे अपन एक्चुअल स्पॉन्टेनिटी. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, दैट इज द on the spontaneity, the effect of a delta G, delta H, delta S and T. तो suppose
ड्रॉ द ग्राफ। तो ये अपना स्केल है समझो, यहाँ अपने को अपन डेल्टा एच लेंगे, यहाँ पर डेल्टा एस लेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा एच निगेटिव, ये हो गया डेल्टा एस पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा एस निगेटिव। क्लियर? अब इसके ऊपर से ये याद रखने का, इट इज अ इंपॉर्टेंट ट्रिक to remember the spontaneity या फिर इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन ए स्पॉन्टेनिटी। अब यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों भी पॉजिटिव है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस आल्सो पॉजिटिव। लेकिन स्पॉन्टेनिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए लेस देन जीरो यानी निगेटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनिटी। अब ये कंडीशन यहाँ कब अप्लाई होगी, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा अपने को। अगर टी डेल्टा एस इंक्रीज होता है तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर फिक्स है तो क्या चेंज कर सकते हैं अपन, ओनली टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन इसका निगेटिव आ जाएगा एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर? तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो दैट इज द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर ओनली, एट हाई टेम्परेचर ओनली। अगर टी बढ़ाते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद में दूसरी कंडीशन लेंगे अपन, डेल्टा एच निगेटिव है, अगेन डेल्टा एच यहां पर निगेटिव है, उसके बाद में डेल्टा एस पॉजिटिव है और ये ऑलरेडी निगेटिव साइन यहां पर है, तो निगेटिव प्लस निगेटिव ऑलवेज निगेटिव। तो यहां पर द रिएक्शन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर while solving the numericals ख्याल में रखने का। that is the reaction will be spontaneous at any temperature when delta H is negative, delta S is positive। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा एच भी निगेटिव है। क्लियर? अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव। क्लियर? तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने को क्या चाहिए, लो चाहिए, कम चाहिए। ये वैल्यू कब कम होंगी, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर अपन कम लेंगे क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव है। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, द प्रोसेस विल बी, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ए लो टेम्परेचर। क्लियर? अब नाउ चौथा पार्ट, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है अपने पास। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, क्लियर, ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव एट एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, देयर इज नो इफेक्ट, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। इसका मतलब द प्रोसेस या फिर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी temperature. So this is the important point, that is trick to find the spontaneity. Clear? Okay.